Okay. Now, this lecture has been specifically uh, taken upon the insistence of few students that, sir, we need some advice from you regarding the grammar session. So, upon the insistence of few students, I thought of taking this lecture, and this lecture is going to be both about grammar, and I'm also going to take some part of reading as well. One more important thing that I would like to tell you is that I sometimes check essay of the students, and I found out that you people are committing lots of mistakes about subject verb agreement. So I'm going to take this subject verb agreement in detail. I am sure that this is going to help you clear out many of your doubts, and it will help you to clear out doubts regarding subject verb agreement, which will help you to improve your writing. So please listen to this very carefully. I hope you have got notebook and pencil because काफी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी. I hope you got notebook and pencil. If you don't have, I'm going to give you 15, 20 seconds to get the notebook and pencil. Yeah, please let me know if you got notebook and pencil with you. We'll go ahead then. Yeah, have you got notebook and pencil in front of you? Please, available, everybody. Check it out. I'm willing to wait for 10 seconds because going to go slow students because काफी बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत गलतियां करते हैं और मैंने सोचा लेट अस डू समथिंग डिफरेंट टू IELTS टुडे थोड़ा सा अलग हटके करते हैं कुछ आज and you will definitely enjoy this session very well. You will definitely enjoy this session. Okay, now first and the foremost thing students, मैं ये कहना चाहूँगा कि when you write a sentence, whenever you write a sentence, there are two things that are needed to be called a sentence, a complete sentence. याद रखिए, अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए फॉर ए सेंटेंस टू बी कॉल्ड अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर ये चीजें हैं तो आपका सेंटेंस होगा, उसको कंप्लीट सेंटेंस कह सकते हो आप. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ सब्जेक्ट. I repeat, the first thing that you need is a subject, and the second thing you need is a verb. So if you have got only two things in a sentence, it is called a complete sentence. For example, Ram plays. It's a complete sentence because Ram is a subject and plays is a verb. So there are only two things needed for a sentence to be called a complete sentence. अब इसमें ये है, नियम ये है कि if the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is plural, the verb should be plural. I repeat, there are two things needed for a sentence to be called a complete sentence, subject and verb. और उनके बीच में agreement भी है. If the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is plural, the verb should also be plural. I hope this idea and concept is clear in your mind. Is it fine? I'll be asking this question to you every now and then because I want a response from your end कि आपको पता चला है कि नहीं. Is the first thing clear in everyone's mind? Is the first thing clear in everyone's mind? There are two things needed. Yes, very good. ठीक है, चलिए ये क्लियर हो जाता है तब आगे बढ़ेंगे. नाउ मैं चाहूंगा कि पहले ये समझ लीजिए, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I want you people to understand the difference between first person, second person and third person. तो याद रहे first person is the person speaking, जो बोलता है. For example, I, we is considered to be the first person. इसको आप ले सकते हैं, नोटबुक में ले लीजिए. If you want to take a note in the notebook, please take it. This is very important because this is going to help you for your life. Not only for IELTS, not only for going abroad, but this is going to be helping you for your entire life. And I have seen students committing mistakes while speaking and while writing about subject verb agreement. So first person जो है is the person speaking. The second person is the person spoken to. मतलब के सामने वाली आदमी. For example, if there are two persons in the room, तो मैं जो हूं, अगर मैं बोलता हूं तो I become the first person. और मैं जिसको बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो खड़ा है यू, उसको आप सेकंड पर्सन बोलेंगे. सो आई रिपीट, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग. द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है. एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, मतलब के जिसके बारे में बोला जाता है. आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन मतलब जिसको बोला जाता है, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बोला जाता है. तो आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, कैट, मंकी. सारी चीजें जिनके बारे में बोला जाता है इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड पर्सन. मतलब टेबल है, चेयर है, पेन, पेंसिल, वो भी थर्ड पर्सन ही हुआ. आपने ये सोचना है फर्स्ट पर्सन है, कोई भी चीज के बारे में ये सोचना है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. तो ऐसे सोचे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन में इन तीनों के सिवा कोई भी. मतलब आई, वी और यू के अलावा, अभी इतना ही याद रखें, वी कैन गो मच इनटू डिटेल ऑफ दैट,
बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें, आप अगर सब्जेक्ट है तो ये तय करना है कि भाई ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, तो ऐसे तय कीजिए। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, सेकंड पर्सन मतलब यू। अब इन तीनों के अलावा कोई भी है वो थर्ड पर्सन है, जिसमें आ जाता है ही, शी, इट, दे तो सही। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। एनी डाउट्स और क्वेरीज स्टूडेंट्स? ये क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इज दिस थिंग क्लियर? ओनली देन आई एम गोइंग टू गो अहेड। फटाफट मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल फास्टर। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी वेरी गुड रिस्पॉन्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थर्ड पर्सन प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग जो आपका जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। प्रॉब्लम फर्स्ट पर्सन में नहीं आती, सेकंड पर्सन में नहीं आती, थर्ड पर्सन में प्लूरल में नहीं आती, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आती है। अब थर्ड पर्सन के लिए आपको जो वर्ब चाहिए, वॉट एवर वर्ब यू नीड टू गेट, हाउ टू क्रिएट a third person verb, you can just go to the slide over here. I repeat, most verbs in English form the third person singular by adding s to the base form. So when you add s to the base form, you get a third person verb. For example over here, sing hai, it becomes sings, because you know that you can add s and it becomes a third person singular verb. Give, it becomes gives. Require, it becomes requires. This is one of the rule. Second rule ये है, verbs ending in ch, s, sh, x or z form the third person singular by adding es. For example, if you say sing, if you want to make a verb of third person singular, then you need to add s. But if you want to add make a third person singular verb of the words ending with this 1, 2, 3, 4 and 5 alphabets, then you need to add es. So watch becomes watches, miss become misses, rush become rushes, mix become mixes, and buzz becomes buzzes. Verbs ending in consonant, मतलब के y, such as try, form the third person singular by changing the y to I and adding es. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो try है, y को I कर दो और बाद में es लगा दो. So it becomes a third person by adding ies. y को निकालने के बाद ies. Remember, y को रखना नहीं है, y को निकालना है, उसके बदले I करना है, and then you need to add es. Or there are number of irregular verbs. I am not going to take lecture of irregular verbs because it is not possible to cover all the irregular verbs, but I am talking about normal verbs. So I repeat, first जो है उसमें पीछे s लगाना है, second में es लगाना है, और तीसरे में ies. Is it clear? What are we doing? What are we doing right now? We are making third person singular verb. I repeat, we are making third person singular verb. Is it clear everybody? Sure, this is what you need to understand. क्लियर? ठीक है, हो गया क्लियर आपका सबका? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द रियल स्टॉप स्टार्ट्स. नाउ दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टेबल स्टूडेंट्स, ये मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप. आई वांट यू पीपल टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टडी कीजिए. I am going to give you 15 to 20 seconds to study this table and then I am going to explain. I am not going to explain directly. So I am giving you 15 to 20 seconds to think. और उसको देखने के लिए, उसको पढ़िए ठीक से. Tell me once you are done. Very good. You people are reading very fast. Is it done? अगर टाइम नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रामर में आपकी हालत खराब हो जाती है, मुझे पता है. So I recommend that you take your time, students. I don't mind going slow. I don't mind going slow. Okay, हो गया क्लियर? Is it done, students? ठीक है, अब देखिए, कैन यू सी वन थिंग. ये टेबल देख के आप कलर्स को देखिए. इफ यू गो थ्रू द कलर्स ऑफ दिस टेबल, you will see something abnormal about. देखिए, if I talk about, see now, first and the foremost thing, first person singular है, the first column is dedicated to first person singular, second person is dedicated to first person plural, third column is dedicated to second person because per second person होता है उसमें singular plural एक ही है,
एंड अगेन थर्ड पर्सन में दो चीजें, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. As you can see, there are, usually in the first line you will find out green color, and in the second line you will see blue color. Is it fine? In the first line usually you see green color, in the second line you see blue color. Over and above you can see why this is red over here, because this is where the problem is. For example, in B form, if you are talking about first person singular, you say I am. फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाता है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों आता है, तो वी आर हो जाता है. इन सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू से यू आर इन प्रेजेंट फॉर्म. बट हियर द चेंजेस कम्स, ये रेड इसीलिए किया जाता है बिकॉज देयर इज अ चेंज ओवर हियर. इन थर्ड पर्सन सिंगुलर यू स्पीक सी इज, सी द चेंज इज देयर. देखो ये सब जगह सब, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पहले में आई एम है, बाकी अब देखिए सब में आर है. You can see everywhere there is R, okay, but there is only one difference. In third person singular you are saying she is, and in third person plural you are saying they are. So everything there is are except in third person where you say is. Again in past form I was, but then you are going for where everywhere, first person plural, second person plural और third person plural में भी, लेकिन third person singular में हो जाता है she was. So ये थोड़ा सा change है. For example, अगेन नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट इन दैट, इन द फर्स्ट, ये जो है बी फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे होता है. आई रिपीट, इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई से आई गो, इन फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑल्सो वी से वी गो, इन सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू से यू गो, बट यहां पे हो जाता है सी गोज. सो प्रॉब्लम आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब में, जहां पे आप सिंगुलर बनाने के लिए पीछे लगाते हो ई एस. मैंने जो पहली स्लाइड में बताया इसके पहले की. सो यू आर ट्राइंग टू मेक थर्ड पर्सन सिंगुलर बाय एडिंग ई एस. इज इट गेटिंग क्लियर? सो यू मेक गो का हो जाएगा गोस. दिस इज द वेरिएशन ओनली इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगेन अगर डू की बात करें तो आई डू, देखिए सब में डू ही है, वी भी डू है, यू भी डू है, यहाँ पे सी डज हो जाता है. सो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर द थिंग्स चेंज, सी डज, उसी के कारण ये पूरे कॉलम में रेड दिया हुआ है. एंड देन अगेन यू से थर्ड पर्सन प्लूरल में दे डू. पास की बात करें तो आई डिड, वी डिड, यू डिड, यहाँ पे सी डिड, ठीक है, दे डिड. सिर्फ प्रॉब्लम है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ठीक है. अगेन प्रेजेंट की बात करें तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, सब में हैव है, लेकिन सी हैज है. सो थर्ड पर्सन में हैव का हैज हो जाता है. एंड देन थर्ड पर्सन प्लूरल ऑल्सो यू हैव गॉट, दे हैव. फाइनली इन पास्ट, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों किससे है? आई हैड, वी हैड, यू हैड, सी हैड और दे हैड. आर दिस थिंग्स क्लियर? So you need to only consider, you need to only take care about when you are writing a sentence in third person singular. और मैं बताना चाहूंगा, let me tell you students, IELTS में when you go for formal writing, I am not talking about informal writing, you are talking about formal writing. शायद आपको याद होगा कि I was taking lectures of essay, और मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन में when you are supposed to give your opinion, तो मैं ऐसा बता रहा था आपको कि you can say I agree, बट मैं कह रहा था आपको कि आप ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा, दिस ऐसे एग्रीज. याद आ रहा है आपको? इंस्टेड ऑफ व्हेन इन द थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, आई रिपीट, प्लीज अंडरस्टैंड, इन द थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वेर इन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन, तो मैं बता रहा था आपको कि आप दो तरीके से अपना ओपिनियन दे सकते हैं. इधर यू राइट गो बाय फर्स्ट पर्सन, आई एग्री विथ एक्स वाई जेड जो भी है. बेहतर ये है कि आप ऐसा लिखे दिस ऐसे एग्रीज. आ गया थर्ड पर्सन, इज इट गेटिंग क्लियर? तो दिस ऐसे एग्रीज, तो दिस ऐसे सिंगुलर, तो उसको पीछे वर्ब है एग्री, तो उसको हमने क्या करा, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब बनाया, एग्रीज कर दिया. और अगर मैं लिखता हूं तो बोलता हूं आई एग्री. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये बताना चाहता हूं कि कितना महत्व रखता है थर्ड पर्सन सिंगुलर का ज्ञान होना. क्लियर? पता चल रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? ये कहां पे इस्तेमाल होता है, कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? ये चीज आपका इस्तेमाल होता है हर पार्ट में. आप जब बोलते हो, कोई भी सेंटेंस लिखते हो, क्योंकि ऐसे में थर्ड पर्सन का बहुत महत्व रखता है. व्हेन यू गो फॉर फॉर्मल राइटिंग, you are having great importance of going for third person rather than giving your opinion yourself. Clear? Okay, तो ये टेबल याद रह गया आपको. Now we are going to go. Okay, remember that subject and verb in a sentence must agree in person and number. I repeat, remember that the subject and verb in a sentence must agree in person and number. मतलब के third person, person मतलब first person, second person, third person, और number मतलब singular और plural.
तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग अ सेंटेंस. इज इट गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ये आएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, इट इज गोइंग टू कम डाउन. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सी द एग्जांपल्स. आप जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, द एलिवेटर वर्क्स वेरी वेरी वेल. तो पहले क्या करना है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट द एलिवेटर. तो एलिवेटर क्या हुआ, इज इट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? कैन यू टेल मी, is elevator first person, second person or third person? I am going to go slow students. क्यों थर्ड, क्यों थर्ड? आप क्या नियम क्या याद रखना है आपको, when you need, what you need to remember is I and V are first person, you is second person, उसके अलावा कुछ भी चीज है वो हो जाती है आपकी थर्ड पर्सन. सो द एलिवेटर इज बेसिकली थर्ड पर्सन. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. प्रॉब्लम है, अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या प्लूरल है? एवरीबॉडी, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? इट इज सिंगुलर. तो मैंने बताया था कि प्रॉब्लम होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो उसका वर्ब जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, you'll have to add s after it. So then the statement becomes the elevator works very well. अगर एलिवेटर्स होता तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये जो वेरिएशन आता है इज ओनली इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एलिवेटर्स होता तो वर्क ही लिखते हम, द एलिवेटर्स वर्क वेरी वेल, बट बिकॉज इट इज एलिवेटर, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी आर राइटिंग एलिवेटर वर्क्स. यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियां करते हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड committing horrifying mistakes in this type of statements. अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट्स, एलिवेटर्स वर्क है, क्योंकि आपको पता है कि वर्क को चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो एलिवेटर्स पहले तो ये देखना है, एलिवेटर्स है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसमें तो आपको पता है देयर इज नो नीड टू चेंज. सो द एलिवेटर्स वर्क वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू एलिवेटर जो सिंगुलर है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यू नीड टू चेंज द वर्ब. पीछे एस मैंने बताया था, वो एस लगाने का, ई एस लगाने का या आई एस लगाने का will depend on the type of verb. Is this things clear? Is this thing clear to you everybody? Then we go ahead. Clear हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. Do you want me to go faster or is it fine? Is my speed fine? Because I'm taking grammar. Do you want me to go faster or is my speed fine? Everybody? Okay, no issues. Thank you. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे आती है. नाउ आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. मैंने बताया वैसे व्हेन यू राइट ए सेंटेंस देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. मतलब जहां पे सब्जेक्ट होता है उससे बाजू में ही वर्ब होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेंटेंसेस लाइक दिस, व्हेन टॉकिंग when talking the IELTS, taking the IELTS PT, you must always check the subject and verb to be sure they agree. However, sometimes it is difficult to decide exactly what the subject is if the subject and verb are separated. मतलब कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बाजू बाजू में है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि भाई ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, सिंगुलर क्या है, तो नियम पता है. बट प्रॉब्लम कब आती है, जब द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट और वर्ब में डिफरेंस होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो ये सोचना है कि सर इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है. टेकन दिस थिंग्स बिफोर एज वेल, बट आई एम टेकिंग इट वंस अगेन. द बॉयज इन द रूम आर स्टडिंग. अब आपको लगता होगा कि सर ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट कौन सा है. सब्जेक्ट इज ओनली द बॉयज. इन द रूम इज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज. आई रिपीट, इन द रूम इज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज, मतलब कि सब्जेक्ट आपका द बॉयज इन द रूम नहीं है. अगर आप बॉयज इन द रूम लेते हो तो आप रूम ले लोगे, और रूम इज सिंगुलर तो ई स्टडिंग लिख दोगे, विच इज रॉन्ग. अगर रूम होता तो आपका पीछे सिंगुलर ही होता, बिकॉज रूम है, रूम्स नहीं है. बट बिकॉज द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द बॉयज इन द रूम आर स्टडिंग, subject is only the boys. The boys in the room is not the subject, because whenever a subject encounters preposition in the form of in, over, under, of, तब subject की आयु वहीं पे खत्म हो जाती है. तो now the subject is the boys in the room, तो because this is plural तो पीछे are आएगा. I repeat, the boys in the room are studying, और the boy in the room is studying होगा. तो अगर boys के बदले boy होता, the answer would have been the boy in the room is studying. Is it getting clear? The boys in the room are clear. ठीक है, हाँ ये करेक्ट है. ये आप पूछ रहे हो सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी. एनीवे, okay. Very often the subject and verb are separated. They will be separated by a prepositional phrase. The prepositional phrase has no effect on the verb. I repeat, the prepositional phrase has no effect on the verb. For example, let us take the first example.
द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं द सब्जेक्ट इज ओनली द स्टडी, लैंग्वेजेस नहीं है सब्जेक्ट। तो आप लोग क्या करते हो, आप ऐसा लिखते हो द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू थिंक दैट द सब्जेक्ट इज लैंग्वेजेस। तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, आप IELTS में राइटिंग टास्क 2 और राइटिंग टास्क में हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आता है, क्योंकि सेंटेंस तो सब्जेक्ट के वर्ब के बगैर बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का नॉलेज नहीं है तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी गलतियां करने की संभावना हो सकती है इफ यू डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, और आपको वैसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस लिखने होते हैं। यू कैन नॉट ओनली राइट सिंपल सेंटेंसेस। That is the reason that knowledge of subject verb agreement plays a massive role. I repeat, the study of languages is very interesting. Over here subject is singular, it is not study of languages. आपको याद रखना है कि ऑफ के बाद जो है वो सब्जेक्ट मायने नहीं रखता। सो ये सिंगुलर है तो पीछे is आएगा। अगर स्टडीज होता STUDIES तो पीछे R होता। अगेन सेकंड एग्जांपल, several theories on this subject have been proposed। आपको पता है बी फॉर्म में चेंज नहीं है, several theories तो ये प्लूरल है तो पीछे आ जाता है have been proposed। अगर थियरी होती तो यहाँ पे होता has been proposed, क्योंकि प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में पता है आपको, मैंने वो टेबल दिया था उसमें वापस गौर करना घर पे जाके, घर पे ही हो आप तो, लेकिन एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि has आएगा। सो सेवरल थियरीज ऑन दिस सब्जेक्ट हैव बीन प्रपोज्ड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, the view of this disciplines varies from time to time। this is a very confusing statement जहां पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। पहले चलिए एक काम करते हैं, let us do a introspection। can you tell me what is the subject over here? the subject is only the view। ठीक है, अब मुझे बताएंगे ये subject the view है वो क्या है? is it first person, second person और third person? the view is first person, second person और third person? everybody, I want a responsive class। ठीक है, इट इज अ थर्ड पर्सन। इज इट गेटिंग क्लियर? ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या प्लूरल है? कैन यू टेल मी इट्स अ सिंगुलर और प्लूरल? इट्स सिंगुलर है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंगुलर अगर है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये वेरीज सामान्य वर्ब क्या था? व्हाट वाज बेसिकली, ये क्या था, एक मिनट चालू रखिए, ये जो है वर्ब जो है दिस वाज बेसिकली, ये वेरी था। यस और नो? तो वेरी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वेरी को आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब बनाना है तो वाई को निकालना पड़ेगा और उसके बदले लगाना पड़ेगा IES। तो व्यू ऑफ दिस डिसिप्लिन हो जाएगा वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इज इट क्लियर? श्योर। और यहाँ पे द डेंजर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, क्योंकि द डेंजर है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पीछे बी फॉर्म में तो इजी होगा। So danger of forest fires is not to be taken lightly. Any queries, any doubts students up to this point of time? Third person singular का महत्व पता चल गया आपको क्या करना है? You need to only worry about third person singular. Clear? Precise? Everything is precise everybody? क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद और डिफिकल्टी होती जाएगी। So you have to be very precise and know what I am trying to say. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। Okay. सो वैसे ही द इफेक्ट्स ऑफ दैट क्राइम आर लाइकली टू बी डेवास्टेटिंग, क्योंकि द इफेक्ट्स है प्लूरल है तो आप पीछे क्या लगेगा? आर। देखिए इतना चीज याद रखिए कि थर्ड प्रॉब्लम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट तो पीछे आर ही आएगा। एक दूसरा एग्जांपल, द फियर ऑफ, ये देखो ये इसमें बहुत गलती हो जाती है। द फियर ऑफ स्मगलिंग एंड रॉबरी हैज कॉज मेनी पीपल टू फ्ली मतलब भाग गए द सिटीज। तो अगर फर्ज करो, से आई पुट इट दिस वे, अगर ये सेंटेंस यहां से शुरुआत होता तो क्या होता? अगर ये सेंटेंस यहां से शुरुआत होती, स्मगलिंग एंड रॉबरी से शुरुआत होती तो क्या होता एवरीबॉडी? इफ द सेंटेंस वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्मगलिंग एंड रॉबरी तो हैव कॉज्ड होता। इज इट क्लियर? हैव कॉज्ड होता, लेकिन ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द फियर से, और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, पीछे हैव लगा देते हैं। तो फियर है, इज इट गेटिंग क्लियर? तो पीछे हो जाता है हैज। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार चीजों को आपको याद रखनी पड़ेगी। टुगेदर विथ, accompanied by, along with and as well as। I repeat, if you got notebook and pencil, you please note down this। The following expressions also have no effect on the verb।
जैसे prepositional phrase आया ऑफ, ऑन, अंडर, तो उसके पहले का वर्ब गिना जाता है, वैसे ही ये चार चीज जो है, तो उसके पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल नॉट सी एनी डिफरेंस इन द वर्ब if these phrases are utilized after subject. So whenever a subject is succeeded मतलब उसके बाद together with आता है, accompanied by आता है, along with आता है, as well as आता है, it is not going to change singularity or plurality of the subject. For example, the actress along with her manager and some friends, आप देख सकते हो actress along with, हमने चार चीजें बताई थी, together with, as well as, accompanied by, और चौथा कौन सा था, what was the fourth one? accompanied by, together with, along with and as well as. तो ये चार चीज को याद रखना है. ओके, द एक्ट्रेस along with her manager and some friends, तो यहाँ पे आ गया है आपका along with. तो आप देख सकते हो the subject is only going to be this. You are not going to have, you don't need to take the entire sentence up to this as a subject. So you can say कि manager और some friends साथ में थे, इसके बावजूद हमने पीछे लिखा है is going. This is very important for you to understand. अगर ऐसा होता द एक्ट्रेस एंड हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स होता, तो आंसर पीछे वर्ब होता आर गोइंग, बट बिकॉज अलोंग विथ है तो एक्ट्रेस उसके बाद जो भी आता है इज नॉट गोइंग टू चेंज द सिंगुलरिटी एंड प्लुरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, तो पीछे आता है इज. वैसे ही मिस्टर रॉबिन्स accompanied by his wife and children is arriving tonight. देखिए कितना ताजुब है, मिस्टर रॉबिन्स उसके साथ उसकी वाइफ और चिल्ड्रन भी है, फिर भी हम इज लिखते हैं बिकॉज वो चार जो है अलोंग विथ, accompanied by, टुगेदर विथ और एज वेल एज, उसके कारण सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता. यही चीज अगर ऐसा होती मिस्टर रॉबिन्स एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो होता आर. ओके, लेकिन इफ द कंजंक्शन एड, वही मैं बता रहा हूं, अगर कंजंक्शन एड होता, एंड होता, देन द प्लूरल, आई मीन द वर्ब वुड हैव बीन आर. मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, एक्ट्रेस अलोंग विथ हर मैनेजर है तो इज गोइंग आएगा, एक्ट्रेस एंड हर मैनेजर है तो आर आएगा. एनी डाउट्स, एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज टू डू. हमने जो पढ़ा उसकी छोटी सी एक्सरसाइज होगी ताकि आपके जहन में सब कुछ आ जाए. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? क्लियर हो गया सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ग्रेट. So let me go for the test now. चलिए, I am going to give you 5 seconds. Okay. इसका मुझे आंसर्स बताइए, अभी मत लिखना पूरा 5. I am going to give you 20 seconds. खत्म हो जाने के बाद I am going to take, you are supposed to give me the answer. Okay, बताइए मुझे. Let me know when you are done. Don't give me the answer. First, let me discuss. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है सब्जेक्ट को ढूंढना. योर जॉब इज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू. Okay, only 4 students have said that they are done. The rest are still doing. शांति से, डोंट वरी स्टूडेंट्स, कोई भागा नहीं जा रहा है. हो गया? ठीक है, चलिए अगर देखते हैं. चलिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? What is the answer of first one? John along with 20 friends is oblique are planning a party. What is the answer of first one? Everybody. The answer of first one is going to be is. क्यों is होगा? Why this is going to be is? Because John है, उसके पीछे along with आ जाता है. मैंने 4 चीजें बताई थी आपको, along with, accompanied by, as well as और together with. अगर वो subject के बाद आते हैं, then it is not going to change the singularity or plurality of the subject. Is it getting there? Very good. So answer is going to be is because John is singular. Clear? Second का आंसर क्या आएगा? What is the answer of second one? Everybody. काफी लोगों ने bring दिया है, काफी लोगों ने brings दिया है. इसका मतलब अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा है. That shows that many. हाँ देखो देखो, bring भी दे रहे हैं और brings भी दे रहे हैं. हाँ, बड़ा मजा आ गया. चलो, काफी ब्रिंग भी है और ब्रिंग्स भी है. अब देखो क्या करना है, जिनके ब्रिंग है और ब्रिंग्स है, पहले क्या करना है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई.
सब्जेक्ट कौन सा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट कौन सा है? व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ड? काफी लोग ब्रिंग दे रहे हो आप. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. यू पीपल आर गिविंग आंसर एज ब्रिंग. सब्जेक्ट है द पिक्चर. द सब्जेक्ट इज पिक्चर. एवरीबॉडी फिर से बताना चाहूंगा, आप लोग काफी लोग मिस्टेक कर रहे हैं. मैं देख रहा हूँ आंसर्स में काफी लोगों की मिस्टेक्स है. सो पहले तो ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है. सब्जेक्ट आपका है सिर्फ पिक्चर. मैंने बताया था कि ऑफ के बाद जो है वो सब्जेक्ट माना नहीं जाएगा. क्लियर? सब्जेक्ट इज द पिक्चर. नाउ इज दिस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? इज दिस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? ओके फाइन. तो पहले तो ये देखना है, पहले मैंने बताया पर्सन, पहले ये देखना है थर्ड पर्सन. क्लियर? इज दिस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल? मुझे बताने का कष्ट करेंगे. इज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल? वेरी गुड. ये पिक्चर है, पिक्चर्स नहीं है. दैट मींस इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. इज इट गेटिंग क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? इसमें से क्या करना पड़ेगा? वर्ब को पीछे क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्ब. तो इसका आंसर होगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी ब्रिंग्स. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज गोइंग टू बी ब्रिंग. जिन लोगों ने ब्रिंग आंसर, ब्रिंग्स आएगा, ब्रिंग्स. दिस इज गोइंग टू बी ब्रिंग्स. जिन्होंने ब्रिंग दिया आंसर, क्या उनको पता चला व्हाई दिस इज द रॉन्ग आंसर? एवरीबॉडी जिन्होंने ब्रिंग दिया आंसर, काफी लोगों ने ब्रिंग दिया था मुझे याद है, उनको क्या पता चला कि व्हाई दिस इज रॉन्ग? एवरीबॉडी ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी ब्रिंग्स. वेरी गुड. ठीक है. थर्ड, द आंसर ऑफ थर्ड वन. थर्ड, the quality of this recording is oblique are not very good. पहले क्या करना पड़ेगा? what you need to do is you need to find out the subject. The subject is the quality. Is it getting clear? So quality है, so it is going to be singular subject. तो पीछे आएगा is. I am going faster over here. थोड़ा सा फास्ट जाते हैं हम लोग. एक मिनट, let me clear this. हाँ ओके. तो थर्ड का आएगा आंसर is. फोर्थ का आंसर, if the duties of these officers aren't either, या क्या आएगा फोर्थ का आंसर? एवरीबॉडी वेरी गुड. सब्जेक्ट यहाँ पे है ड्यूटीज. ड्यूटीज है, ऑफ के बाद जो ऑफिसर्स है वो मायने नहीं रखता. तो द सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ड्यूटीज. तो ड्यूटीज है तो क्या आएगा? आरंट आएगा. एंड फाइनली द फिफ्थ वन. फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन? द इफेक्ट्स. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? द इफेक्ट्स. इज इट गेटिंग क्लियर? सब्जेक्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट द सब्जेक्ट. और ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर प्लूरल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल. क्लियर? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो आंसर आएगा आपका हैव. अगर ये इफेक्ट होता तो आंसर वुड हैव बीन एज. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? शैल वी गो अहेड नाउ? क्लियर होगा यहां तक सब कुछ एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ ये बाकी है. चलो हाँ ये हो गया. हाँ हाँ ये कर लीजिए. चलिए गेट मी द आंसर ऑफ दिस वन. ये 5 का फटाफट आंसर दे दीजिए, फटाफट जल्दी से. चलिए द फर्स्ट का आंसर द यूज है. इज इट गेटिंग क्लियर? द आंसर ऑफ फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन प्लेस ऑफ हैव. या क्या आएगा आंसर इसका? हैज आएगा. अंडरस्टूड? द आंसर इज गोइंग टू बी हैज. क्यों? कि द यूज, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. द सब्जेक्ट इज द यूज. ओके. इन द सेकंड स्टेटमेंट द सब्जेक्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स. तो आंसर आएगा इसका आर. थर्ड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब प्लूरल है तो आंसर होगा आर. यहाँ पे है मिस्टर जोन्स अकोम्पनीड बाय सेवरल मेंबर्स. मैंने बताया था मिस्टर जोन्स है तो वो अकेला है, मतलब इट इज गोइंग टू बी सिंगुलर. तो यहाँ पे होगा हैज. और पांचवे का आंसर क्या आएगा? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ फिफ्थ वन एवरीबॉडी? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ फिफ्थ वन? यस बताइए मुझे. उर्विश वेरिस. वेरिस कैसे आएगा उर्विश? उर्विश वेरिस कैसे आएगा मुझे बताओ. मुझे ये आपको पता चलना चाहिए. वेरिस कैसे आएगा? आप गलतियां करोगे वरना ऐसे में. आंसर इसका वेरी आएगा क्योंकि ये प्लूरल है. ये प्लूरल है. द लेवल्स है. लेवल होता तो वेरीज होता. आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेवल होता तो वेरीज होता. याद रहे लेवल्स, लेवल्स है मतलब प्लूरल है तो फिर तो सीधा सीधा ही वेरी होगा. उर्विश इज इट क्लियर? ओके एवरीबॉडी इज क्लियर?
Are you enjoying this, or you want me to take IELTS only? Guys, do you want me to take this, or you want me to take IELTS only? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट्स फाइन, थैंक यू. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. आप आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी ये देख के कि सर ऐसा होता है, ऐसा होता है. अब ऐसा लगेगा आपको. देखिए अब मजा आएगा. वर्ड्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्रोनाउंस. ये ऐसे वर्ड्स है, ये देखिए यहाँ पे देखिए. Some words are often confused by students as being plural. The following words must be followed by singular verbs and pronouns in formal written English. ये ऐसे वर्ड्स है जैसे कि ये 12 चीजों को याद रखिए. Anybody, anyone, anything. Nobody, no one, nothing. Somebody, someone, something. और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग. ये 12 बार जो वर्ड्स है, ऑल दिस 12 वर्ड्स इज आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओनली. आई रिपीट, you can take a screenshot of this. All these 12 words, if these words are at the beginning of the sentence, they are always going to be followed by singular verb only. जैसे कि everybody is coming, anybody is coming, somebody is coming, anything is there, nobody is coming, no one is coming. तो ये सारे words ऐसे हैं. These are all the words which are going to be followed by singular verb only. तो गलतियां क्या करते हो आप लोग? आप ऐसा लिखते हो. देखिए मैं लिख के बताता हूं और आप बोलोगे सर हाँ आप ऐसा लिखते हो. आप ऐसे ऐसे शुरुआत करते हो. यू स्टार्ट द ऐसे लाइक एवरी पीपल. नाउ डू यू नो व्हाई दिस थिंग्स कम? एवरी पीपल कहां से बोलते हो आप? बिकॉज यू डोंट नो दैट एवरी इज बेसिकली अ सिंगुलर थिंग. तो एवरी पीपल नहीं आएगा, एवरी पर्सन आएगा. अब प्रॉब्लम कहां से आती है पता है आपको? ગુજરાતીમાં તમે લોકો કહો છો ને છોકરાઓ, ગુજરાતીમાં બધા લોકો, બધા લોકો. એટલે તમે લોકો શું કરો? બધાનું શું કર્યું તમે લોકોએ? વોટ યુ ડીડ? એવરી. અને લોકોનું શું કર્યું? પીપલ. એટલે એવરી પીપલ થઈ ગયું ને? આઈડિયા આવ્યો? વેર યુ આર કમિટિંગ મિસ્ટેક્સ? આર યુ ગેટિંગ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે? એવરીનું કરી નાખ્યું, બધાનું કરી નાખ્યું એવરી, અને લોકોનું કરી નાખ્યું પીપલ. એટલે યુ સે એવરી પીપલ, ધીસ ઇઝ વિચ ઇઝ રોંગ. You need to say every person. You cannot directly transform that in English. So it is going to be every person. Clear? Because ये आप जब ऐसे दिखते हो तो काफी कबार ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है आपका. इट्स अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट. सो याद रहना चाहिए आपको. आफ्टर दिस 12 वर्ड्स यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगुलर वर्ब. दूसरा है नन और नो. याद रहेगा? पहली 12 चीजें याद रह गई आपको. एवरीबडी, एवरीवन वाली. You need to remember that. If you've not taken the screenshot, have you taken the screenshot of that? Have you taken the screenshot of that? Okay. Now you need to take this none or no. ये बहुत important है. Now none or no में ऐसा है, none can take either a singular or plural verb depending on the noun which follows it. एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, वो जो 12 शब्द थे उसके पीछे तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा. लेकिन नन और नो ऐसे वर्ड्स है जिनके पीछे सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है. वो डिपेंड करता है उसके पीछे नाउन कौन सा है. जैसे कि देखिए, नन ऑफ द काउंटरफिट मनी हैज बीन फाउंड. तो ये जो मनी जो है वो सिंगुलर है. दिस इज बेसिकली सिंगुलर. तो हमने पीछे इस्तेमाल किया हैज. लेकिन अगर यही चीज अगर यहां पे होती नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसके पीछे जो नाउन है वो प्लूरल है, तो हमने इस्तेमाल किया हैव. सो नन और नो में ये नियम है कि इट डिपेंड्स कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर और प्लूरल, विल डिपेंड ऑन द नाउन दैट फॉलोज नन और नो. इज इट क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. द फर्स्ट रूल बताया था मैंने आपको, जो 12 जो वर्ड्स थे वो. और ये दूसरा रूल है कि नन और नो के पीछे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट दैट फॉलोज, नाउन दैट फॉलोज रादर. यहाँ पे स्टूडेंट है तो आपका आएगा हैव. क्लियर? ओके. अब आगे बढ़ेंगे. नो में भी ऐसा है, इट कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल. जैसे कि देखिए, नो एग्जाम्पल, नो के पीछे एग्जाम्पल जो है इट्स बेसिकली सिंगुलर, तो हमने पीछे इस्तेमाल किया इज. एंड अगर नो एग्जाम्पल्स होता तो पीछे इस्तेमाल करते आर. एनी डाउट्स और क्वेरीज? आई होप थिंग्स आर क्लियर एवरीबडी. वापस पूछना चाहूंगा.
हर एक पॉइंट के बाद पूछना चाहूंगा। क्लियर? सो पहला था वो 12 वर्ड्स, एंड नाउ यू हैव गॉट दिस, एंड नाउ यू हैव गॉट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो नन और नो याद रखिए, बहुत सिंपल है, ये एक सेंटेंस बनाते हो तो इसका याद रखना है। अब देखते हैं आइदर और नाइदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप क्योंकि आइदर और ये सब क्यों सीखना पड़ता है? बिकॉज इन ऐसे यू आर गोइंग टू राइट कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, यू मे स्टार्ट ए सेंटेंस विद आइदर और नाइदर, और आपको पता है कि आइदर के साथ आता है और नाइदर के साथ आता है नॉर। तो नियम ये है, when either and neither are followed by or and nor, the verb may be singular or plural depending on whether the noun following or and nor is singular or plural. I repeat, और नॉर के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो पीछे सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसके पीछे अगर प्लूरल नाउन है इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, this is a statement, or this is a formula that you need to understand. Neither or either plus noun, वो important नहीं है noun, लेकिन nor और के बाद if it is a plural noun then it is going to be followed by a plural verb. For example, neither John nor his friends, you can say कि nor के बाद जो आया is friends है, that means it is a plural noun, that means we are saying are going. लेकिन अगर either John or his friends, वैसे ही either और के बाद is friends आया, वो भी plural है, तो हमने लिखा are going. So I repeat, depending upon which type of noun comes after or nor, either और neither के बाद नहीं, और nor के बाद, तो nor के बाद अगर plural है तो verb भी plural, और के बाद अगर वर्ब प्लूरल है तो सॉरी नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। वैसे ही अगर सिंगुलर है तो इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, जैसे कि नाइदर जॉन नॉर बिल इज गोइंग, और आइदर जॉन और बिल इज गोइंग। क्लियर हुआ कि नहीं एवरीबॉडी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिपीट, डिपेंडिंग अपॉन और नॉर के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये आइदर तो पहला याद रखिए, आई विल ट्राई टू रिपीट, बार बार करता रहूंगा मैं। The first one was those 12 words, anybody, anyone, anything वाले। दूसरा था, लिख दो नोटबुक में तो आपको याद रहेगा। दूसरा था नन और नो, वो डिपेंड करेगा पीछे एग्जाम मतलब नाउन, वो डिपेंड करता है, नाउन पीछे सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। वैसे ही यहाँ पे भी नाइदर और नॉर में और नॉर के बाद जो है वैसा होगा। क्लियर? नाउ लेट अस गो अहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरंड्स? कैन यू टेल मी व्हाट आर जीरंड्स? यस एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी व्हाट आर जीरंड्स? जीरंड्स किसको कहेंगे? यस एनीबॉडी हु नोज व्हाट जीरंड्स आर? वेरी गुड, युधिष्ठिर इज राइट। कोई भी वर्ब होता है उसके पीछे आईएनजी लगता है, इज व्हाट वी कॉल एज जीरंड्स। जैसे कि अगर प्ले है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। प्ले है इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके आगे मैं टू लगा देता हूं तो इट बिकम्स एन इन्फिनिटिव। क्या बनेगा उसका? इन्फिनिटिव। और अगर इसके पीछे आईएनजी लग जाता है दैट मींस प्ले का प्लेइंग, इट बिकम्स अ जीरंड। क्लियर? सो एनी वर्ब व्हिच इज फॉलोड बाय आईएनजी इज कंसिडर्ड टू बी अ जीरंड। क्लियर? कोई बात नहीं, पता नहीं अभी चला तो आज पता चला तो आज सही। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब प्लस आईएनजी जीरंड, मतलब द वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। आई रिपीट, अगर कोई भी सेंटेंस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरुआत करते हो आप, then it is always going to be followed by a singular verb. Let me give you a small example. Knowing her, यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। Knowing her, have, पता नहीं चलता have लिखे या has लिखे। तो नियम ये याद रखना कि अगर कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरुआत करते हो आप, it is always going to be followed by singular verb. तो देखिए पहले में क्या है, knowing सिंगुलर आईएनजी है तो पीछे हमने हैज लिखा, डाइटिंग आईएनजी इज लिखा, नॉट स्टडिंग आईएनजी हैज कॉज लिखा मतलब वो भी सिंगुलर, वॉशिंग आईएनजी इज रिकमेंडेड वो भी सिंगुलर। वैसे ही बीइंग कॉर्डियल आईएनजी तो पीछे इज लिख दिया, राइटिंग आईएनजी, अच्छा ये भी देखिए पीछे वो वर्ब है मेक्स तो वो भी सिंगुलर है, या मेक्स हर हैप्पी, क्योंकि लेट फॉर एग्जांपल आईएनजी फॉर्म है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि ये चीज आपको याद रखनी है। whenever sentence, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, we are running out of time. So whenever a sentence starts with ing form of the verb, it is always going to be followed by singular verb. Is it clear everybody? Yes.
Clear or not? Yes, any questions, any doubts students? Clear? Okay, not an issue. Clear हो गया ये सब कुछ? तो पहला था, आई रिपीट, पहला वो 12 वर्ड्स, फिर आया नन और नो, तीसरा नाइदर नॉर आइदर और, फिर आया आपका ये फॉर एग्जांपल आईएनजी वाला, एंड नाउ द कलेक्टिव नाउन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेंटेंस में फॉर एग्जांपल द कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन्स के पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। जैसे कि ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे कि देखिए कांग्रेस, कांग्रेस मतलब पॉलिटिकल कोई जो है, ये अपना कांग्रेस नहीं, लेकिन कांग्रेस इज बेसिकली पॉलिटिकल संगठन। देन यू गॉट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन क्राउड, आपको लगता है सर क्राउड में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा पीछे, सर क्राउड में अगर 50 लोग हैं, देन इज इट, डोंट यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब? नो, इन स्पाइट ऑफ दैट you need to understand that whenever a subject is a collective noun, it is always going to be, these are not the only collective nouns that I am showing you in right in front of the screen. Let me tell you, there are number of collective nouns. I'm just giving you a few examples कि अगर ऐसा collective noun है तो a sentence is always going to be followed by singular verb. देखिए यहाँ पे देखिए, just go to the examples. The committee has met है, have met नहीं है। The family were elated नहीं है, was elated है। The crowd were wild नहीं है, was wild है, singular है। कांग्रेस हैज इनिशिएटेड है, सिंगुलर है। ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉस्ट है, हैव लॉस्ट नहीं है। क्लियर और नॉट? देख लीजिए, आवर टीम इज गोइंग टू विन, आवर टीम आर गोइंग टू विन नहीं है सर, टीम में तो 15 लोग हैं, फिर भी इज लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव नाउन। सो हमारा पांचवा नियम या चौथा नियम जो भी है, दैट अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओनली। क्लियर हो गया पांचवा नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? आज पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर कर देंगे आपका, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट ग्रुप्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स। तो अगर ये है, देखिए ये ऐसे वर्ड्स भी बहुत है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर आप गिर जंगल में गए हो, when you have gone, if you have gone to Gir jungle and if you see 5 to 6 lions in front of you, you don't say a group of lions, it's a wrong, it's an incorrect English, you always say the pride of lions। क्या कहेंगे? the pride of lions। तो ऐसे केस में इसको ऐसे वर्ड्स है, देखिए जैसे कि flock of birds, you don't say group of birds, isn't it? you say school of fish। मतलब अगर 50-60 फिश घूम रही है, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में बहुत सारी फिश इधर उधर होती है, हजारों लाखों की तादाद में, तो उसको बोलेंगे आप स्कूल ऑफ फिश। हर्ड ऑफ कैटल, प्राइड ऑफ लायंस, अ पैक ऑफ डॉग्स। तो अगर ऐसे वर्ड्स से अगर अगर सब्जेक्ट पार्ट में है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओनली। जैसे कि देखिए, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इतने सारे बर्ड्स है तो भी सर, हाँ, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज सर्कलिंग ओवरहेड, द हर्ड ऑफ कैटल इज ब्रेकिंग, सिंगुलर आ गया। अ स्कूल ऑफ फिश इज बीइंग अटैक्ड बाय शार्क्स। तो ये हुए आपके दूसरा नियम। तो कलेक्टिव नाउन में एक और चीज याद ऐड कर दीजिए, flock of birds, pride of lions, school of fish, herd of cattle, इसके पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, भले ही वो कैटल में हजारों कैटल क्यों ना हो। क्लियर और नॉट? आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर ये खत्म हुआ, आगे बढ़ेंगे। इज इट डन एवरीबॉडी? यस, आई एम नॉट गेटिंग यस फास्टर। आप डाइजेस्ट तो कर रहे हो ना, वरना मैं अगले टाइम ले लूंगा। यस स्टूडेंट्स, आर यू डाइजेस्टिंग और नॉट? आर यू एबल टू डाइजेस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं क्लियर करवा दूंगा, लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दैट इज माई गारंटी। क्लियर? आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। बहुत मेहनत लगती है भैया ये पीपीटी बनाने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ अब, ये जो चीज आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए $25 आप लिखते हो, $25 आर टू मच टू पे, $25 ईज आएगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग टाइम, मनी एंड मेजरमेंट्स यूज्ड एज अ होल आर सिंगुलर्स। 50 मिनट्स इजंट, आरंट नहीं आएगा, 50 मिनट्स इजंट इनफ टाइम टू फिनिश दिस टेस्ट। बहुत ताजुब वाली बात है। $20 इज ऑल आई कैन अफोर्ड टू पे फॉर दैट रिकॉर्डर। 2 miles इज टू मच टू रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कलेक्टिव नाउन्स जिसमें टाइम, तीन चीज का याद रखना है, टाइम, मनी एंड मेजरमेंट्स, तो उसके पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। क्लियर हो गया ये चीज? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, आगे बढ़ेंगे, चलिए। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अ नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सेंटेंस में कभी कभार अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का शुरुआत करते हो। से यू ऑलवेज स्टार्ट, मेनी टाइम्स यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो नियम ये है, याद रखिए, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब याद रहना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस डी, बिकॉज डी डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है, सो वेन एवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद द नंबर ऑफ, उसके पीछे प्लूरल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब भी लगता है। देखिए ताजुब वाली बात है। If a sentence starts with the number of and it is going to be followed by plural noun, then also, और अगर अ है, यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ स्टार्ट होता है तो प्लूरल का प्लूरल ही रहेगा, लेकिन द से स्टार्ट होता है, एक मिनट चलिए रखिए, एक मिनट, हाँ ये रहा, सॉरी, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, याद रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अ इज नॉट अ डेफिनेट आर्टिकल, इट्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल। तो व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नंबर ऑफ, भले उसके पीछे प्लूरल नाउन है तो भी प्लूरल वर्ब भी लगेगा, वो तो ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ है उसमें थोड़ा सा चेंज है, पीछे प्लूरल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। आप देखिए एग्जांपल देखिए तो पता चल जाएगा। जस्ट गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स, प्लीज गो थ्रू। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो पीछे देखिए आर लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ डेज है तो इज है क्योंकि दी है। अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है तो पीछे हैव है बिकॉज अ है, एप्लीकेंट्स भी प्लूरल है तो हैव है, लेकिन द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स है फिर भी पीछे इजी है। सो आई रिपीट, इफ ए सेंटेंस विद स्टार्ट्स विद अ नंबर ऑफ, पीछे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, लेकिन द से स्टार्ट होता है, पीछे प्लूरल नाउन है फिर भी सिंगुलर ही लगेगा। क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यप, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस, एवरीबॉडी? चलिए अब सिर्फ दो ही चीजें बाकी, बस खत्म हो गया आपका, फिर एक ये वी आर गेटिंग, ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट, टेंशन वाली बात नहीं है। नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नाउन्स है जो हर वक्त प्लूरल ही होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल गौर कीजिए। कभी भी बोलना नहीं है पेंट, पेंट नहीं कहना है आपको, पेंट्स ही कहना है। पेंट कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। आई रिपीट, देयर इज नो वर्ड लाइक पेंट, पेंट्स ही है। शॉर्ट शब्द ही नहीं है, शॉर्ट क्योंकि शॉर्ट है ना, वो छोटा है, नाटा आदमी, दिस गाय इज शॉर्ट, तो शॉर्ट है ही नहीं शब्द, मतलब वो शॉर्ट उसके लिए है, लेकिन आप जो शॉर्ट्स पहनते हो उसको शॉर्ट्स ही कहना है। वैसे ही जीन्स, सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, आई ग्लासेस, ट्वीजर्स, ये सारी चीजों के पीछे बाय डिफॉल्ट एस लगेगा ही लगेगा, भले ही वो सिंगुलर में है, मतलब एक ही है, मतलब अगर आपके पास एक ही कैंची है तो आप बोलोगे दिस सीजर्स आर गुड, आप ऐसा नहीं कहोगे दिस सीजर इज गुड, तो दो मार पड़ेगी, एक तो सीजर जिसको सीजर्स बोलना चाहिए था आप सीजर बोल रहे हो, और सीजर्स है तो पीछे आर लगना चाहिए, उसके बदले सीजर करके आपने इज लिखा, तो यू आर गेटिंग you are getting a problem, or your marks are deducted because you are committing two grammatical mistakes in the same sentence. Number one, सीजर्स का सीजर कर दिया, और क्योंकि आपने सीजर किया तो पीछे इज लगा दिया, तो गलत है। पहले सीजर्स होना चाहिए और पीछे आर होना चाहिए। तो ये ऐसे कॉमन वर्ड्स है जिसके पीछे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूटिलाइज प्लूरल वर्ब्स ओनली, सीजर्स आर। एनी डाउट्स इन दिस? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? जल्दी से, ये थोड़ा सा बस इतना ही चीज याद रखना है आपको। क्लियर? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे देखो, अब ये छोटा सा थोड़ा सा काम करना है आपको, देखो है, देखो अब पैर, हाँ अब ये छोटी सी यहाँ पे चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, एक मिनट ठहरिए। हाँ, अगर इसको सिंगुलर करना है, आई रिपीट, सीजर्स है तो आर लगेगा, लेकिन अगर इसको सिंगुलर करना है तो अ पेयर ऑफ लगा दिया। अगर what did I say? If you want to make this singular, you need to add a pair of. I repeat, if you want to make it singular, you need to write a pair of. तो ऐसे करना पड़ेगा, सीजर्स आर आएगा लेकिन अ पेयर ऑफ सीजर्स इज होगा। चलिए देखिए देखिए एग्जांपल्स देखिए तो क्लियर हो जाएगा। द पेंट्स आर इन द ड्रॉवर, लेकिन देखिए नीचे देखिए अ पेयर ऑफ पेंट्स है इज इन द ड्रॉवर। क्लियर? दिस सीजर्स आर डल, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज डल। देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज सीखना। द प्लायर्स मतलब पकड़, वेयर ऑन द टेबल, प्लूरल, लेकिन द पेयर ऑफ प्लायर्स हो तो हो जाएगा वॉज। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन एवरीबॉडी? ओके चलिए आगे बढ़ते, लास्ट, हाँ ये लास्ट है आपका, दिस इज द लास्ट वन, डोंट वरी स्टूडेंट्स, हो गया खत्म आपका काम, नथिंग टू वरी। देयर इज और देयर आर, ये ऐसा सेंटेंस, वेन एवर यू स्टार्ट ए सेंटेंस विद देयर इज और देयर आर,
यू आर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स। क्यों? बिकॉज देखिए जनरली कैसा होता है कि इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, देन इट इज फॉलोड बाय वर्ब, बट वेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर इज और देयर आर, the verb comes first, the subject comes afterwards, and that is where you people are likely to commit mistakes. तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, नियम ये है, इसको जाने दीजिए। डायरेक्टली मैं एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ। तो देखिए देयर इज है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, वेन एवर देर इज अ सेंटेंस, आई रिपीट, वेन एवर देर इज अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद देयर, तो आपने सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप पीछे देखिए, इसको कीजिए, गौर कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए। वैसे ही यहाँ पे अ नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स, सिंगुलर है क्या प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लगेगा। और एक्सीडेंट है, सिंगुलर है, आप पीछे देखना, मतलब यूजुअली यू ऑलवेज concentrate on the subject because subject comes first, but in a sentence that start with there is or there are, subject comes afterwards। आप is और are का इस्तेमाल पहले करते हो, बाद में subject आता है और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो आप क्या करते हो, देखिए ऐसा लिखते हो, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सी आप ऐसा करते हो, लेट मी एक्सप्लेन यू, बड़ा मजा आएगा। हाँ ये देखिए आप ऐसा लिखते हो, ओके तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, ऐसे सेंटेंस अगर, या आर यू एबल टू सी व्हाट आई हैव टाइप्ड एवरीबॉडी, आपको दिखा मैंने टाइप क्या किया? हाँ ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू इज, या यू नीड टू डू इज, ये आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा कि ऐसा जब देर से शुरुआत होती है तो देखिए पीछे क्या है, अगर स्टूडेंट है तो हैज लगा दीजिए, आई रिपीट, स्टूडेंट है तो सिंगुलर है तो आगे हैज लगा दीजिए, चेक करना पड़ेगा आपको, और स्टूडेंट्स है तो हैव लगा दीजिए। सो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि यू बेसिकली व्हेन यू राइट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आप वर्ब पहले लिख देते हो और बाद में सब्जेक्ट लिखते हो तो याद नहीं रहता वर्ब क्या लिखा है, ध्यान नहीं जाता, and you are more likely to commit mistakes. So whenever a sentence starts with is, I mean there is or there have, there are, you need to take care of this. Any questions, any doubts, students? Okay, ठीक है, देखिए देयर वेर टू मैनी पीपल, पीपल है तो प्लूरल है तो ऐसे हो जाएगा, देयर हैज बीन एन इंक्रीज, इंक्रीज सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा, देयर हैव बीन इंक्रीजेज हो जाएगा वरना, क्लियर? ओके फाइनली देयर वाज अ वाटर ऑन द फ्लोर, देयर वाज वाटर, वाटर सिंगुलर है, अनकाउंट नाउन है तो उसके पीछे भी वॉज लगेगा, क्लियर? ओके फाइनली चलिए टाइम फॉर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, लेट मी नो। चलिए लास्ट, खत्म हो गया, ऑलमोस्ट डन। आई एम सो हैप्पी दैट काफी लोग थे, आई एम सो हैप्पी, जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक there are one or two students who have gone, but otherwise you people have remained, so thank to you, thankful to you। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले 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 जस्ट मिनट, लेट अस, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आप इस ये लेक्चर के बाद बिल्कुल गलतियां नहीं करोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मेरी गारंटी। यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलतियां नहीं करोगे, मेरी जवाबदारी। ठीक है देखिए, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। चलिए रूल नंबर 1 पहला लेते हैं, लेट अस टेक द फर्स्ट वन। नाइदर बिल नॉर मैरी इज ऑब्लिक आर गोइंग टू द पार्टी। रूल क्या होगा, मैंने क्या बताया था, रूल क्या सिखाया था आपको, कि अगर नाइदर और नॉर आता है तो आपको ये देखना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल कि और नॉर के बाद क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इन दिस केस नॉर के बाद है वो सिंगुलर है मैरी, तो पीछे आएगा इज, अंडरस्टूड? सो आंसर इज गोइंग टू बी इज। अच्छा, एनीथिंग इज ऑब्लिग आर बेटर देन गोइंग टू, हाँ ये क्या आएगा, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, इज आएगा। क्यों इज आएगा, बिकॉज मैंने बताया था रूल क्या है, व्हाट इज द रूल ओवर हियर, रूल क्या है, नहीं नहीं रूल क्या है, कौन सा रूल था ये बताओ, आई एन जी एनीथिंग वाला।
सो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी मतलब एनीथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, एनीथिंग वाला, तो पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो एनीथिंग इज बेटर देन गोइंग टू, जीरन वाला रूल लगेगा। आई रिपीट, इट इज गोइंग टू बी द रूल ऑफ जीरन, क्लियर, आईएनजी वाला, ओके, तो पीछे इज ही आएगा। सो सेकंड का आंसर आएगा इज। स्केटिंग इज ऑब्लिक आर, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या आएगा आंसर? स्केटिंग आईएनजी है, तो पीछे क्या आएगा? कोई भी सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से शुरुआत होती है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय इज। वेरी गुड। अब ये चौथा याद आ रहा है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, याद आ रहा है? तो नियम क्या है, पहले बताइए नियम क्या है? अ नंबर ऑफ है तो क्या आएगा? पीछे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही लगेगा, लेकिन द नंबर ऑफ है तो प्लूरल, प्लूरल नाउन है तो भी सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन ये तो अ नंबर ऑफ है, ठीक है ना? तो क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी वर, अ नंबर ऑफ, ये आएगा इसका वर, ठीक है। और बाद में एवरीबडी, एवरीबडी मैंने बताया था, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, याद आ रहा है? 12 चीजें याद आ रही है आपको? एवरीबडी, 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 हाँ, उसके पीछे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, तो पीछे आएगा, इसके पीछे आएगा हैज, क्लियर। अब लास्ट 5, चलिए इसका कीजिए फटाफट, चलिए फटाफट। सारे नियम याद रखे, आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस आंसर्स राइट। नहीं, फिर भी लाजवंती, पीछे पेंट्स है तो भी अब पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा, तभी इज लगेगा, पेंट्स है तो आर ही लगेगा पीछे। ब्लू पेंट्स आर गुड, ऐसा ही बोलना पड़ेगा आपको। एनीवे, सो लेट अस गेट द आंसर्स ऑफ दिस। फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर योर ग्लासेस, योर ग्लासेस, मैंने बताया था ग्लासेस ऐसे वर्ड्स है जो इसके पीछे आ, ग्लासेस के पीछे क्या लगाया आप लोगों ने? वॉज लगा दिया, हो गया काम, कल्याण हो गया भाई मेरा। तो मैंने क्या बताया था आपको? ग्लासेस, सीजर्स, टोंग्स, ये ऐसे वर्ड्स है जिनके पीछे प्लूरल ही लगता है, मैंने बताया तो था आप लोगों को। कुड यू नॉट रिकॉल? हाँ, तो इसके पीछे क्या लगेगा? वर लगेगा। अब पेयर ऑफ ग्लासेस है तो वॉज लगेगा, लेकिन ग्लासेस है, टोंग्स है, मैंने बताया था आपको, इसके पीछे वर ही लगेगा। क्लियर और नॉट एवरीबडी? श्योर, ओके ओके। सेकंड जो है देयर, अब वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट विद देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या करना पड़ेगा? पीछे देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? इज इट प्लूरल और सिंगुलर? पीपल है, नहीं नहीं, पहले मुझे आंसर दीजिए, सिंगुलर है क्या प्लूरल है? पीपल इज सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल, हाँ, देयर यू आर, तो प्लूरल है तो आगे क्या होगा? देयर वेयर, ठीक है। ओके, तीसरा द कमिटी, इट्स बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन, बताए ना, कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन, तो क्या आएगा? हैज या हैव? वेरी गुड, पीछे हैज लगेगा, मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन के पीछे हर वक्त सिंगुलर वर्ब भी लगता है। अब पेयर ऑफ जीन्स, इसका क्या होगा? अब पेयर ऑफ जीन्स तो सिंगुलर हो जाएगा, वॉज, अगर जीन्स होता तो वर आता, लेकिन अब पेयर ऑफ जीन्स है तो क्या होगा? वर आएगा, क्लियर, सॉरी वॉज आएगा, क्लियर, ओके सॉरी। और ईच स्टूडेंट, हैज आएगा या हैव आएगा? ईच स्टूडेंट सिंगुलर है तो पीछे आएगा हैज। ओके, सो थिंग्स आर क्लियर नाउ। क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? तो लेट मी गिव यू स्मॉल रिकैप, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। डू यू वांट मी टू रिकैप? 2 मिनट का रिकैप ले लेना है। श्योर, लेट मी 1 मिनट, 2 मिनट लगेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा काम। जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट अ मिनट, जस्ट 2 मिनट्स।
या ओके, सो आपने, मैंने बताया था आपको, वी स्टार्टेड विद दिस, हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि इफ़ यू वांट टू, देयर इज अ प्रॉब्लम विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमने यहाँ से शुरुआत की थी। याद रखना है आपको वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे करना है। इसके लिए मैंने ये बताया था, आई गिव यू दिस, यू नीड टू ऐड एस फॉलोइंग, और बाद में ई एस लगाना पड़ेगा काफ़ी वर्ब्स में, और काफ़ी कॉन्सोनेंट्स में वाई निकाल के आई एस लगाना पड़ेगा। एंड आई देन शोड यू द टेबल इन विच, यू नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, you need to memorize this table. There is always an issue with third person singular, otherwise there is no issue. Okay, so then I gave you an example, elevator, because it is third person, and because it is singular you need to add s to it, otherwise it is absolutely, everything is fine. Then I showed you how the nouns and verbs are, you know, a prepositional phrase say you don't need to consider in the room, you need to only consider the boys. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट 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 यहाँ से हो जाता है। ये क्लियर हो गया था आपका, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फिर हमने किया था, हाँ, दिस फोर थिंग्स, अगर सब्जेक्ट के पीछे टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, अलोंग विथ और एज वेल एज आता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, याद है ना। बट एंड आ जाता है तो इट इज गोइंग टू बी प्लूरल। देन आई टोल्ड यू एंड। अब ये पीपीटी बहुत डिफिकल्ट है घुमानी, तो मैं आपको ऐसे ही बोल बोल के सिखा देता हूँ। सो देन, यू नो, आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, and everybody, everyone, everything, somebody, nobody, anybody। हाँ, तो ये 12 जो शब्द है उसके पीछे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, नन और नो। नन और नो में ऐसा है, इट डिपेंड्स ऑन द नाउन दैट फॉलोज। इफ द नाउन इज प्लूरल, द वर्ब शुड बी प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल ये है, नो एग्जाम्पल इज गुड, बट नो एग्जाम्पल्स आर गुड। ठीक है, देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट आइदर और, नाइदर नॉर। उसमें नियम ये है कि और नॉर के बाद अगर सिंगुलर नाउन, देन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट आईएनजी फॉर्म, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से शुरुआत होती है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट collective noun, a sentence wherein there is collective noun in the subject is always going to be followed by singular verb. Then there were certain phrases जैसे कि flock of birds, pride of lions, फिर you know, herd of cattle, तो उसके पीछे singular verb ही लगेगा। The pride of lions is in front of me, भले ही 4-5 लाइन है तो भी the pride of lions, lions आर आएगा, लेकिन the pride of lions होगा तो is आएगा। उसके बाद मैंने समझाया था आपको, काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल में ही होते हैं, जैसे कि सीजर्स आर, पेंट्स आर, जीन्स आर, लेकिन उसको अगर सिंगुलर करना है तो आप पेयर ऑफ लगा दीजिए तो पीछे इज लगा सकते हो। वैसे जैसे कि सीजर्स आर गुड, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज गुड। क्लियर। फाइनली हमने किया था, देर आर, देर, देर इज, देर आर, मतलब अगर कोई सेंटेंस देर से शुरुआत होती है, देन डिपेंड्स, पीछे देखना पड़ेगा, यू नीड टू गो अ स्टेप फर्दर, यू नीड टू चेक आउट द you know, noun, because noun comes afterwards, verb comes first, usually verbs, noun comes first, subject comes first। तो वैसे ही पीछे देखना पड़ेगा, स्टूडेंट है तो इज लगा दीजिए, स्टूडेंट्स है तो आगे आर लगा दीजिए, देर की बात कर रहा हूँ। और सबसे डिफिकल्ट था वो, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा अलग, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, लेकिन अ द नंबर ऑफ है प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके, दिस एंड्स द एंटायर लेक्चर स्टूडेंट्स। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? Yes, I hope you enjoyed this lecture. Okay, I hope you got the knowledge. अब राइटिंग में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी हैविंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन योर राइटिंग। क्लियर? थैंक यू, मेनी डाउट्स वर क्लियर, थैंक यू सो मच। हाँ, पिक्चर क्लियर हो गया। Okay, thank you students, thank you so much for being here, thank you, good night.